آپ نے اس وقت اپنی ساس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں خوفزدہ تھی، انہوں نے مجھے اندر بند کر کے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بھی مار دینا، تمہارے بچے کو بھی مار دینا۔ عثمان کے ساتھ نازیبہ حالت میں تھی حمزہ اور عثمان کے بارے میں جو آپ کے تعلقات کی ہیں یا کہانی گڑھی جا رہی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ ایک اللہ جانتا ہے۔ صرف حمزہ کہہ رہا تھا، عثمان بھائی نے وہاں بھی مار کھاتے بھی یہی کہا کہ یہ میری بھابھی ہے، یہ میری بہن ہے، کل بھی میری بہن تھی، میری آج بھی بہن ہے، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ میں کس طرح برداشت کرتی کہ ایک قاتل کو میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دوں۔ دونوں قاتل موجود تھے؟ دونوں قاتل 10 دن وہاں جتنے دن میں رہی دونوں قاتل موجود تھے وہاں پہ۔ میرا ڈی این اے کروائیں، میرے بچے کا ڈی این اے کروائیں، پھر اس انسان سے پوچھیں کہ تم اپنی بیوی پہ الزامات لگاتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی؟ آپ میرا ڈی این اے کروائیں، میرا جو بچہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا، انہوں نے اسے بھی الزامات لگا کے گندا کر دیا ہے۔ میرا ڈی این اے کروائیں، میرے بچے کا ڈی این اے کروائیں، اس کے بعد اس انسان کے گرے بان سے پکڑ کے پوچھیں کہ تم اپنی بیوی پہ الزامات کیوں لگا رہے ہو۔ جب انیس بی بی کا قتل ہوا آپ گھر پہ موجود تھیں اور ایک آپ کی مالک مکان نے آپ کو دیکھا، جو سارا گھر میں جو ہنگامہ ہوا، آپ نے اس وقت اپنی ساس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں خوفزدہ تھی، انہوں نے مجھے اندر بند کر کے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بھی مار دینا، تمہارے بچے کو بھی مار دینا۔ شاہد کا ہاتھ ہے۔ شاہد نے ورگلایا حمزہ کو اور عثمان کو؟ ہاں جی حمزہ عثمان قتل میں شامل تھا؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد، آپ دیکھ رہے ہیں MB نیوز ٹی وی۔ ناظرین، کہ ایک حاملہ عورت نے اپنے دیور اور اپنے نندوئی کے ساتھ مل کر اپنی ساس کو قتل کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی حاملہ خاتون انیلا، ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے دیور کے ساتھ نندوئی کے ساتھ ناجائز مراسم تھے اور آپ کی ساس نے دیکھ لیا اور آپ تینوں نے مل کر اپنی ساس کو قتل کر دیا۔ آپ کیا کہتی؟ یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے، بے بنیادی الزام لگا رہے ہیں مجھے پھنسانے کے لیے۔ آخر آپ کو ہی کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ جو ان کے گھر میں اس کے باپ نے کہنا ہے وہی چل رہی ہے، اسی لیے وہ انسان اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے، وہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اپنے باپ پہ۔ کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شاہد ندیم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی اصل قاتل کون ہے؟ ہے۔ شاہد ندیم ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ میری ماں کا قاتل ہے، اس کو کیوں بچانا چاہتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی آپس کی بات ہے کہ کیوں بچانا چاہ رہا ہے یہ، جب وہ پکڑا جائے گا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ میرا نکاح نامہ تک ان لوگوں نے مجھے نہیں دیا، کیوں نہیں دیا میرا نکاح نامہ تک مجھے؟ نعمان پہلے بھی شادی شدہ تھا، نکاح نامے کے اوپر لکھا ہے، اور اس کا جو پہلے والا نکاح نامہ ہے اس کی تصویر سے اس کے کزنوں کے پاس تھی، اچھا، انہوں نے ہمیں سینڈ کی ہے، وہ بھی میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ انیس بی بی کے قتل کے بعد قتل کے بعد وہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑ دی اس نے یا مر گئی ہے؟ اس کے اوپر طلاق لکھا ہوا ہے، طلاق لکھا ہوا ہے۔ طلاق لکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ دوسری شادی ہے؟ یہ طلاق یافتہ ہے۔ مجھے فون کر کے کہا کہ ہمیں واپتا کی طرف سے 2 لاکھ روپے ملنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں نکاح نامہ پہلے کروانا پڑے گا۔ میرے گھر والے نہیں ایگری تھے، وہ کہہ رہے تھے ایک ہی دفعہ کریں گے، بار بار نہیں کرنی۔ اس نے مجھے باتوں میں لیا، جیسے بھی کہا کہ نہیں تم گھر پہ بات کرو، مجھے 2 لاکھ روپے مل رہا ہے وہاں سے واپتا سے۔ انہوں نے صرف اس بات کو چھپانے کے لیے کہ یہ شادی شدہ ہے پہلے سے، انہوں نے پہلے نکاح نامہ کیا، اور نکاح نامہ بھی ہم لوگوں کو نہیں دیا، اس نے مجھے نہیں دکھایا، میرا آئی ڈی کارڈ تک میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں کے پاس ہے۔ اچھا انیلا، آپ کی پھوپھو کا بیٹا ہے، جی بڑا قریبی رشتہ ہے، جی۔ ہر وقت آنا جانا، شادی سے پہلے بھی، کیا آپ کی والدہ کو، والد کو، بھائیوں کو یا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی پہلے سے بھی شادی تھی؟ ہمارا پہلے اتنا آنا جانا نہیں تھا۔ اس کی مدر جو ہے وہ کورونا میں تھی، میری پھوپھو اچھا، کورونا میں تھی، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی ہیں، ساتھ ہی میرے چاچو آئے ہیں۔ پہلے آپ نہیں ملتے تھے؟ پہلے ہم ناراضگی تھی، ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا۔ اچھا اس دوران اس نے کہیں شادی کی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، کتنا عرصہ چلی وہ؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنا عرصہ چلی ہے، اس بات کا جواب یہ نعمان دے کہ اس کو لڑکی کون تھی، کس وجہ سے اس نے اس سے بھی نکاح شادی ڈیورس دیا اسے، اس کے بعد اس نے مجھے بنا بتائے مجھ سے شادی کیوں کی۔ میرے گھر والوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ یہ پہلے شادی شدہ ہے، اس سے سارے گھر والوں نے اس بات کو چھپایا۔ یہ وہ طلاق نامہ ہے جو ان کے شوہر نے ان سے پہلے بیوی کو طلاق دی اور ان کو اس بارے بالکل بتایا نہیں گیا، اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی پھوپھو کا بیٹا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ خیر، ان کی کوئی لڑائی جھگڑے تھے۔ اچھا، آپ پولیس کسٹڈی میں کتنے دن رہی ہیں؟ 4 دن رہی ہوں۔ کیا پوچھا گیا؟ قتل کیسے ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے بھی سب کچھ یہی پوچھا مجھ سے۔ 4 دن میں صرف یہی بات پوچھے گی؟ حمزہ اور عثمان کے بارے میں جو آپ کے تعلقات کی ہیں یا کہانی گڑھی جا رہی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ ایک اللہ جانتا ہے۔ کیا پولیس نے اس بارے بھی تحقیقات کی؟ پولیس نے اس بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی۔ صرف حمزہ کہہ رہا تھا، عثمان بھائی نے وہاں بھی مار کھاتے بھی یہی کہا
कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। कल भी मेरी बहन थी, मेरी आज भी बहन है, मैं बेगैरत नहीं हूँ। उस्मान ने डीएसपी के ऑफिस में भी कहा है कि मेरी ये नीला कल भी बहन थी, मेरी आज भी बहन है, और मैंने इसे हमेशा बहनों की तरह ही समझा है। उसने थाने में भी यही बात की है। जब पुलिस के सामने भी ये क्लियर हो गया उस इंसान ने मुझे बहन कहा है, तो फिर ये मुझ पर इल्जाम तराशी क्यों कर रहा है? आप उस वक्त थाने में थी? जी, मैं थाने में भी थी, मैं डीएसपी के ऑफिस में भी थी। आपके सामने ये बातें हुई हैं? मेरे सामने ये बात की है उस इंसान ने। और हमजा बारे? हमजा में मुझ पे इल्जामात लगा रहा है, वो अपने बाप के कहने पे लगा रहा है, जो कि शाहिद नदीम है। अच्छा, यानी उसने रिश्तों के तकद्दस का ख्याल रखा उस इंसान ने। लेकिन हमजा जो कि नुमान का सौतेला भाई भी है, उस नाते वो आपका भाई भी हुआ और देवर भी हुआ, ऐसे ही है। वो आप पर इतने संगीन इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? उसके बाप ने 10 दिन तक उसने ये इल्जामात क्यों नहीं लगाए मुझ पर? अच्छा, जब तक मैं 10वीं तक वहाँ पे रही हूँ, उसके बाद ही उसने मुझ पर ये इल्जामात क्यों लगाए? उसके बाप ने जो कुछ उसे कहा है वो सब कुछ मेरे पे वही इल्जामात यानी लगाया। जितने दिन आप वहाँ पर रही हैं उनके घर 10 दिन तक अनीस बीबी के मरने के आप पर कोई इल्जाम नहीं था, जब आप वापस आई हैं तो इल्जाम लगे। मैं इधर आ गई, मुझे खुद नुमान ने भेजा कि 2 सूट लेकर जाने हैं, एक तुमने पहन के जाने, एक साथ लेकर जाओ ताकि कोई तुम्हें बुरा ना कहे। जब मैं लेकर आ गई 2 सूट के अलावा सबको दिखाकर आई पूरी फैमिली को, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जब अनीस बीबी का कत्ल हुआ आप घर पर मौजूद थी और एक आपकी मालिक मकान ने आपको देखा, जो सारा घर में जो हंगामा हुआ, आपने उस वक्त अपनी सास को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं खौफजदा थी। इन्होंने मुझे अंदर बंद करके कहा था कि हमने तुम्हें भी मार देना, तुम्हारे बच्चे को भी मार देना, और मुझे सुबह से बुखार भी था, मेरा यूरिन भी बंद था, और मैं हॉस्पिटल से अभी मुझे लेकर आई हूँ। ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि शोर कर पाती, और डरी हुई थी मैं अंदर बैठी हुई। अगर मालिक मकानी ने देखा है तो मालिक मकानी ने अम्मी की डेथ के बाद क्यों बात नहीं की? उसने क्यों शोर नहीं डाला? आप बहू थी उसकी, तो आपने उस वक्त वहां पर क्या चीज देखी? किस तरह बात पर किसी बात पर झगड़ा हुआ उस्मान से, किस बात पर हमजा से कुछ झगड़ा हुआ कि नौबत जो है वो कत्ल तक जा पहुंची? उन लोगों ने मुझे अंदर फेंक किया कमरे में कि बाहर नहीं आना। जो मुझसे कहा है मैंने आपको सब कुछ बताया, कोई इनकी बात नहीं। अचानक से ये लोग आए हैं। कब से आप उस घर में हैं? मैं 4 जनवरी से हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। 8 से 10 माह हो गए? हाँ जी, 10 माह हो गए। तो 10 महीने में आपने कोई देखा कि इनकी कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई बात कत्ल की है, कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है कत्ल करने का, उसके पीछे लड़ाई क्या थी? क्योंकि उसका सारा इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है। मेरे शोहर ने मुझे, जब मैंने उसे ये कत्ल के बारे में बताया, उस टाइम उसने सबके बीच में ये कहा है कि मुझे शाहिद नदीम जो इसके वालिद हैं, पहले वालिद हैं, उन्होंने ये कहा है कि उस्मान की और अम्मी की और पापा की कोई लड़ाई चल रही थी। कोई लड़ाई चल रही है? और लड़ाई चल रही थी नुमान और इसका छोटा भाई शानी जब पाकिस्तान में था, शानी था, ये बात मुझे नुमान ने खुद बताई है। उसने से बताया है कि बाद में इसने बाजार में मेरे पाँव पड़ के मुझसे माफी मांगी है। मेरे पीछे से हमजा भाई और उस्मान भाई दोनों ने पकड़ा है। आपको कमरे में बंद कर दिया? कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद आप बाहर नहीं आई? मैं बाहर नहीं आई, कमरे में रही हैं। तो कमरे में नीला आपका घर और ऐसा था कि आपके गली बिल्कुल आपकी वो खिड़की के पास थी, तो आपने कोई शोर नहीं किया? मैं खौफजदा थी, जहन बाहर शोर कर रहा है, कोई उसकी नहीं सुन रहा। और जो मेरी कंडीशन थी, उन्होंने कहा तुम्हें भी मार देना, बच्चे को भी मार देना है, और मुझे बुखार भी था उस टाइम पे, तो मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शोर कर पाऊँ। इन्होंने डंडे से मारा, उन्होंने खुद उसमें कहा थाने में, डीएसपी के ऑफिस में। डंडा किसने मारा है? वो आपस में बात कर रहे थे, डीएसपी ने मुझे सामने वाले रूम में बंद कर दिया था और वहां सिर्फ आवाजें आ रही थी। बाद में जब डीएसपी ने इनसे बात क्लियर कर ली, फिर उसने मुझे बुलाया वहाँ पे। इन दोनों ने बताया कि किसी जिसने भी इसमें से डंडा मारा है, जूता मारा है, जो कुछ भी किया है, इन दोनों ने खुद सब कुछ माने हैं। बीच में इन्होंने मेरा कहीं नाम नहीं लिया, सिर्फ मेरे किरदार को गंदा किया जा रहा है, वो भी हमजा कर रहा है, जो उसके बाप ने उन दिनों में से पट्टी पढ़ाई है ताकि इसे आगे रख के इसे सिर्फ गंदा किया जा सके और खुद वो बच जाए। लड़ाई अनिला थी क्या? ये लड़ाई इन लोगों को पता, इन्होंने मेरे सामने कभी कोई बात मेरे शोहर ने नहीं की। जो बात होती थी उस्मान के घर में, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उधर ही बात होती थी, मेरे घर में इनके दरमियान कोई बात नहीं होती थी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, पापा और अम्मी दोनों उस तरफ चले जाते थे, घर में कोई बात नहीं करते थे मेरे सामने। जब ये कत्ल हुआ है उससे पहले कोई इनकी तू तकरार हुई है, कोई झगड़ा हुआ आपस में? 2 दिन पहले पापा का हुआ है अम्मी के साथ, लेकिन किस वजह से हुआ ये मुझे यानी जो आपका सौतेला ससुर है शाहिद, उसका मकतूला के साथ झगड़ा हुआ? हाँ जी, अम्मी के साथ हुआ है। अच्छा, लेकिन किस वजह से हुआ ये मुझे नहीं पता। और 1 माह पहले भी जब ये गांव गए हैं, गांव से वापस आए हैं पापा, तब भी इन लोगों ने झगड़ा किया है और पापा ने इन्हें बड़े बेबुनियाद फजूल किस्म की बातें की हैं अम्मी को। वो तो इन्होंने सबके सामने बोली है। वो अपने पहले ससुराल से होकर आए थे, तब इन दोनों की तब लड़ाई हुई है। लेकिन तकरीबन नुमान आया, उसने मुझसे पूछा है कि क्या बात हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपसी मामला है, खुद जाके अंदर पूछ लो। अच्छा अनिला, जिस दिन ये मामला हुआ घर पहले कौन आया? हमजा घर में मौजूद था, उस्मान घर पर मौजूद था,
और किस तरह मारा अनीस बीबी को? हमजा मौजूद था, जैन भी मौजूद था उस टाइम पे। जैन को इन्होंने कैसे बाहर भेजा है या क्या किया है, वो अंदर जो था, डिसेबल बाहर बच्चा है जैन? डिसेबल नहीं, बिल्कुल ठीक बच्चा है। अच्छा जिसे ये शो करवाते हैं डिसेबल है, बिल्कुल डिसेबल नहीं है। आप उसके हाथ में मोबाइल में आपको सब कुछ बता देगा वो बच्चा। अच्छा, उसको बाहर भेज देते हैं? बाहर भेजा, किस तरह से भेजा ये इन लोगों को पता है। आप क्या कर रही थी उस वक्त? मैं बर्तन धो रही थी उस टाइम पे। अच्छा, इन्होंने बालों से पकड़ाया और मुझे रूम में जाकर बंद कर दिया। तो किस तरह मारा अनीस बीबी को? मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे मारा है, वो थानेदार और डीएसपी उन्होंने सब कुछ बताया है। इन्होंने उन्हें बताया है। यानी दोनों अपनी माँ को मार रहे हैं। अच्छा, जब आप 10 दिन वहां पर रही हैं, जिन्होंने आपके सामने आपकी सास का कत्ल किया वो भी उस घर में मौजूद रहे हैं? वो भी उस घर में मौजूद था और मुझे ये लोग ये भी कह रहे थे कि इसे खाना बना कर दो। मैं किस तरह बर्दाश्त करती कि कातिल को मैं खुद अपने हाथों से खाना बना कर दूँ। दोनों कातिल मौजूद थे? दोनों कातिल 10 दिन वहाँ जितने दिन मैं रही दोनों कातिल मौजूद थे वहाँ पे। और इस बात पे शायद नदीम ने मेरे साथ बदतमीजी भी की है। खाना मेरे बेटे को तुम क्यों नहीं बना के दोगे? उस दौरान नुमान आया, नुमान ने आके उस टाइम पे मेरी साइड ली है। तब तक नुमान सारी हकीकत जान चुका था? नुमान को मैंने सब कुछ बता दिया था। 10 दिन तक नुमान ने मुझसे हलफ भी लिया है, मुझसे साइन भी करवाए हैं कि तुमने सब कुछ ये कहना है अदालत में। क्या कहना है? कि जो कुछ तुमने देखा है, इसे सब कुछ मुझसे लिखवाया है कि मैं ड्यूटी पर था, ये था वो था, सब कुछ इस इंसान ने मुझसे लिखवाया है। लेकिन जैसे ही मैं तस्वीर से वहाँ से आती हूँ, मेरे खिलाफ सब कुछ इन्होंने सब कुछ मुझ पे डाल दिया। मेरे किरदार तक को गंदा कर दिया। ना मैं जीने वालों में, ना मैं मरने वालों में हूँ। सिर्फ आप पर नहीं, आपके आने वाले बच्चे पर भी उसका असर हो। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं, फिर इस इंसान से पूछें कि तुम्हें अपनी बीवी पे इल्जाम लगाते हुए थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, जो तुमने अपनी आंखों से भी नहीं देखे। और ये कह रहे हो कि कातिल ने मुझे बताया, कातिल ने मुझे बताया। आपके मामू अख्तर, उसका भी कहना है कि अनीस बीबी ने मुझे बताया कि इनको हमने शर्मनाक हालत में देखा है। अगर उन्होंने देखा, वो फुटेज में क्यों नहीं है? पूरे दिन की ये जो पुलिस है, इनसे पूरे दिन की फुटेज क्यों नहीं रहती? उन्होंने कहा है कि कत्ल से 2 घंटे पहले मैंने आके से पकड़ा है, सबके सामने उन्होंने ये लफ्ज किए हैं। वो उस फुटेज में वो चाचू क्यों नहीं आ रहे? आपकी जात पर इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी जात पर इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ जायदाद की खातिर। आपके मामू जो हैं, उनका कहना था कि अनीस बीबी ने उनको 2 दिन पहले बताया है कि अनीला उस्मान के साथ नाजेबा हालत में थी और हमजा पहरे पे था। क्या कहते? आप कॉल डाटा निकलवाएं। चाचू ने अम्मी ने अगर चाचू से कहा है तो कॉल डाटे में वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। वो घर पे गई थी? ये झूठ बोल रहे हैं चाचू ने। ये आपको वहीं से साबित हो जाएगा जब आप फुटेज देखेंगे। वो कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि 2 घंटे पहले मैं आया हूँ, और तब भी उन्होंने मुझ पर वही इल्ज़ाम लगाए हैं जो वो बता रहे हैं कि अम्मी ने मुझे बताए हैं। अगर मैं गुनाहगार थी तो वो उस फुटेज में क्यों नहीं आए? वो उस टाइम पे, उस दिन चाचू हमारे घर पे नहीं आए। 10 दिन आपकी उस्मान के साथ या हमजा के साथ लड़ाई हुई हो? मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई। हमजा घूरियाँ डालता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था। अच्छा, वो सामने था। क्या कहता था? बस ऐसे घूर के चला जाता था, मैं साइड में मुंह कर लेती थी। मेरे हस्बैंड को पता, मेरे हस्बैंड ने खुद देखा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझ पर इल्ज़ाम मुझ पर लगाए हैं कि हमें हमजा ने कहा है। वो एक कातिल है। इसकी बहन यहाँ तक कह रही है कि उसके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जब आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उन लोगों ने मुझे तक ये कह दिया है, हमने सारा ब्लेम तुम पे डाल देना है। आपके ससुर ने पहले दिन भी आपको ये बातें की थी? ये बातें की थी कि और बाद में भी ये बातें जारी रही? बाद में ही ये बातें जारी रही, और उन्होंने वही किया है। आपके सामने है कि सारा ब्लेम वो मुझ पे डाल रहे हैं। अब हमजा भी क्लियर है, उस्मान भाई भी क्लियर है, सारा इल्ज़ाम। वो तो मान चुके हैं ना, पुलिस कस्टडी में कत्ल तो मान चुके हैं। वो कत्ल माने हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो ये मुझ पे लगा रहे हैं। 10 दिन वो लोग मुझे डराते भी रहे हैं, धमकाते भी रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी इस बारे में पता है। उसके बावजूद वो इंसान मुझे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मुझे जिंदा दरगोब कर रहा है वो इंसान। आप कहती हैं कि इसके पीछे शाहद का हाथ है? शाहद का हाथ है। शाहद ने वर्गलाया हमजा को और उस्मान को? हाँ जी। हमजा उस्मान कत्ल में शामिल था? जी। आपका जो बच्चा है अभी दुनिया में आया नहीं है, उस पर तरह तरह के गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये हमारा बच्चा नहीं है। आप मेरा डीएनए करवाएं। मेरा जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, इन्होंने उसे भी इल्ज़ाम लगा के गंदा कर दिया है। मेरा डीएनए करवाएं, मेरे बच्चे का डीएनए करवाएं। उसके बाद इस इंसान के गिरेबान से पकड़ के पूछें कि तुम अपनी बीवी पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। आपको खुद इस सारा सच सामने आ जाएगा। ये डीएनए क्यों नहीं करवा रहा मेरा, मेरे बच्चे का? आप डीएनए के लिए राजी हैं? मैं डीएनए के लिए राजी हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इल्ज़ाम दे के मुझे खुद से वहशत हो रही है। उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी जिसका बाप उसके ऊपर उठ के खुद इल्ज़ाम लगा रहा है। और भी इतने खिलौने। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी वही हामला बहू अनीला, जिस पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए गए, कत्ल में शामिल किया गया। लेकिन आज अनीला ने ये कुरान पाक हाथ में पकड़कर हलफ देकर
ये कहा ना ही तो मेरा इस कत्ल के साथ तल्लक है, उस्मान मेरा भाई है, हमजा मेरा भाई है। अगर किसी को फिर भी शक है, वो कहते हैं कि तीनों में से ये बच्चा किसका है, तो मैं हाजिर हूं, मेरा डीएनए टेस्ट कराया जाए। मेरी जो किरदार कशी की जा रही है, मेरा ससुर शाहिद जो कत्ल के फौरी बाद घर आ जाता है, उसको सामने तफ्तीश किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी सास और ससुर के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। ये कुछ दिन पहले अपने पुराने ससुराल से होकर आई हैं, ये इनकी दूसरी शादी थी। घर आती हैं तो इनका झगड़ा तूल पकड़ जाता है। 2-4 रोज गुजरते हैं और अनीस बीबी को कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल के वक्त सबसे पहले जो घर आने वाला शख्स है वो शाहिद है, मेरा सुतेला ससुर है। उसको अगर पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उससे बयान लेती है, तो वो एक ही दिन में तमाम चीज़ें सामने रख देगा। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे बच्चे पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे उससे वहशत होने लगी है। मैं मीडिया पर नहीं आना चाहती थी। मैं शरीफ माँ बाप की शरीफ बच्ची हूँ। मुझे इन इल्ज़ामात से इतनी वहशत हुई कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी। आज अगर मैं किसी टीवी चैनल पर आई हूँ तो ये सिर्फ बच्चे के लिए आई हूँ और मुझे कोई खौफ नहीं है। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन पर भी इसका असर होगा। इनके शोहर नुमान ने उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए, 40 दिन तक किस चीज़ का इंतज़ार किया गया, ये हम जानेंगे अनीला के भाई बाबर से। आपको अगली वीडियो में हम इनके भाई से भी मिलवाएंगे। ये वो बाबर है जिसने सबसे पहले नुमान को बताया कि तुम्हारी माँ का कातिल हमजा और उस्मान है। वो कहती है कि मैं हाजिर हूँ, मेरा सबसे पहले मेरा डीएनए करवाया जाए ताकि मेरी किरदार कशी रुक सके। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी अनीला की और दूसरी तरफ की भी सारी बातें सुनी। असल कहानी जो थी वो आपके सामने खोल दी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अनीला कसूरवार है या नहीं है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।